Good morning everyone. Welcome to this video. Student, we are again continuing with the chapter Fun with Magnet. That is chapter number 13. We already learned about the magnet and its uses, right? Magnet is a piece of iron or any other material which has the ability to attract other object. Example, compass needle, fridge, magnet, MRI scanner are some common examples of magnet, right? I also told you the story of that Shepherd found it accidentally when he was grazing the herd of sheep, right? Okay, so we also learned about the types of magnet: horseshoe magnet, bar magnet, cylindrical magnet, ball-ended magnet, needle magnet, etc., right? And we also learned about the magnetic and non-magnetic materials. We learned about the two poles of the magnet, north pole and south pole. North pole is the north seeking pole and south pole is the south seeking pole. Okay, and we learned about the magnetic field, that is the area, the region where the magnetic force is maximum or strongest. That region is called the magnetic field, where it can attract the other object. And now for today we are going to learn about the steps to make a magnet. How to make your own magnet. आप कैसे अपना खुद का एक मैग्नेट बना सकते हैं. टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन. एक रेक्टेंगुलर पीस लेंगे आयरन का. प्लेस इट ऑन अ टेबल. आप उसे एक टेबल में प्लेस कर दीजिए, राइट. टेक अ बार मैग्नेट. प्लेस वन ऑफ इट्स पोल्स नियर वन एज ऑफ द बार ऑफ द आयरन. ठीक है, आप क्या किया, आपने एक आयरन का पीस लिया और उसको एक टेबल में रख दिया, राइट. और एक बार मैग्नेट लिया और उसको प्लेस वन ऑफ इट्स पोल नियर द वन एज. एक एज में उस आयरन बार के ऊपर आप लगाएंगे. विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूव अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन बार. और इस तरीके से उस बार के ऊपर खींचेंगे बार बार उस आयरन के मैग्नेट को. आयरन के बार के ऊपर मैग्नेट को बार बार क्या करेंगे, उसके ऊपर खींचेंगे, उसे मूव करेंगे, राइट. लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल टू द सेम पॉइंट ऑफ द आयरन बार फ्रॉम वेयर वी बिगिन. और बार बार इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे. मूव द मैग्नेट अगेन एंड अगेन अलॉन्ग द आयरन बार इन द सेम डायरेक्शन. एटलीस्ट यू हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस फॉर 30 to 40 मिनट्स. और 30-40 मिनट्स के बाद आप चेक करेंगे कि आपका जो आयरन का पीस है वो मैग्नेट में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ. by it means attaching some iron nails to it. उसके पास आप iron nails लेके जाओगे, अगर वो attach हो रही है मतलब it means attract हो रही है, so it is converted into a magnet, right. So let me show you with the help of one video, okay, that I taken for you. See, this is a magnet. Okay, so what you have to do, how to make it, just see. You have to take a piece of iron. आपने एक आयरन का पीस लिया, ओके. देन आपने ऊपर से एक क्या लिया, बार ऑफ वन बार ऑफ मैग्नेट, बार मैग्नेट लिया आपने और आप उसे मूव करेंगे फ्रॉम द एंड टू द नेक्स्ट एंड, राइट. एंड यू हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस एटलीस्ट 30 टाइम्स. आपको 30 टाइम्स इस प्रोसेस को रिपीट करना है. देन after 30 times you will repeat, then it will be converted into a bar magnet. Okay, more than 30 times, it means 30 to 40, जैसे मैंने स्टेप्स में आपको बताया था, 30 to 40 टाइम्स आपको इस प्रोसेस को करना है और फिर चेक करना है कि वो मैग्नेटाइज हुआ कि नहीं हुआ. यू हैव टू टेक आयरन पीस नियर दैट पर्टिकुलर आयरन पीस. If it is attracting, so it is converted into a magnet. If not attracting, it means it is not converted. Then you have to repeat your process again, and then you have to check it again. Is it magnetized or not? Okay. So in the previous video you learned about that how you can make your magnet. Okay, now the topic is attraction and repulsion among the magnet. Magnets में attraction repulsion क्या होता है बेटा. I already told you that magnet have two poles. One is north and one is south pole. Okay, so if you are taking two magnets near to each other, then always the like poles will repel and the
opposite pole will attract each other. Okay, like poles repel, the north pole of the two magnet always repel each other, and the two south poles always repel each other, and the unlike poles always attract each other. North and south pole will attract. Take a two magnets and then you will see the result. Okay, so this is how you can find out the direction of the poles also, right? So always a north and south pole will attract one side of one north side of one magnet, and south side of a one magnet will attract each other, and same side of the both magnet will repel each other. This is the law of repulsion and attraction among the magnet. Okay, now finding direction. Students, magnet is a very helpful thing for the travelers. It is used for navigation, it is used for finding direction, and it is not using not we are using today only. We are using from so many years ago. It means in old days the travelers only use this magnet to find out the direction. Magnets are extremely helpful in navigating direction. This is because a freely suspended magnet always point toward the north direction. Okay, because जो फ्रीली मैग्नेट होता है वो हमेशा उसका जो नॉर्थ पॉइंट होता है, नॉर्थ सीकिंग पॉइंट होता है, वो नॉर्थ डायरेक्शन की साइड जाता है. इसकी वजह से आपका जो कोई भी चीज़ फाइंड आउट करनी होती है वो इजीली फाइंड आउट हो जाती है. मैग्नेट्स वर नोन टू द पीपल फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स. ऐसा नहीं है कि अभी हम मैग्नेट्स के बारे में जान रहे हैं, बहुत पहले से जानते हैं. मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स वर ऑल्सो नोन टू दैम. और मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ वो लोग पहले से जानते थे हमसे. जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट में एक स्टोरी सुनाई थी दैट ग्रीस में एक मैग्नस था, शेपर्ड था, जिसने क्या किया था, मैग्नेट उसने डिस्कवरी की थी. लाइक एक्सीडेंटली ही डिस्कवर्ड द मैग्नेट. ओके, दैट इज़ अ रॉक दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटाइट, राइट. और उसमें क्या किया था उसने, उसकी एक स्टिक थी जिसमें आयरन लगा हुआ था लास्ट में, राइट. एंड ही वॉज hitting on that rock, and he find it is difficult to make it away from that rock. So this is how he found the magnet. Okay, so you might have read many interesting stories about the use of magnet. One of the such stories about the emperor in China named Huang Ti. आपको एक और स्टोरी सुनाती हूँ. हवांग टी एक आपका चाइना का एक एम्परर था. इट इज़ सेड दैट ही हैड अ चैरियट विद अ स्टैचू ऑफ अ लेडी. ठीक है, उसके पास एक चैरिट था, स्टैचू एक लेडी का, दैट कुड रोटेट इन एनी डायरेक्शन, जो कि किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकती थी जो स्टैचू. ओके, इट हैड एन एक्सटेंडेड आर्म एज इफ इट वाज शोइंग द वे, राइट. उसके पास एक मतलब उस स्टैचू की एक लंबी सी मतलब आगे बढ़ती हुई एक आर्म थी, एक्सटेंडेड आर्म थी, जो कि किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती थी. ओके, it had extended arm as if it was showing the way. The statue had an interesting property. Statue की अच्छी बहुत property थी. It would rest in such a position that its extended arm always pointed toward the south. Right? उसकी जो extended arm थी वो हमेशा south की side ही पोजिशन करती थी. वो जब रेस्ट में आती थी तो वो साउथ की साइड उसकी आर्म पॉइंट करती थी. By looking at the extended arm of the statue, the emperor was able to locate the direction when he went to new places of his chariot. ठीक है, जब भी वो कभी अपने न्यू प्लेसेस जाता था, कहीं भी जाता था, तो उस स्टैचू की हेल्प से वो डायरेक्शन को फाइंड कर लेता था इजीली. दिस इज द स्टोरी ऑफ द चाइना. ओके, नाउ हाउ विल यू prove with the help of activity that magnet is helpful in finding direction. Even in the compass also, a device used to find direction, a magnetic needle is placed inside a compass. सबने compass जरूर देखा होगा. आपके छोटे छोटे आपके बैग्स में, आपके बॉक्सेस में compass इजीली देखने को मिल जाता है, राइट. तो compass is a magnetic needle. वो भी मैग्नेट ही है, मैग्नेटिक नीडल है, that is used to फाइंड डायरेक्शन, क्योंकि इसमें मार्किंग की रहती है नॉर्थ साउथ, और वो इजीली रोटेट करती है, एंड इट ओनली पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. ओके, जो आपका नॉर्थ साइड होगी वो नॉर्थ साइड को
अपने आप जहाँ आप जाते जाओगे उसके अकॉर्डिंग मूव करती जाएगी। जो नॉर्थ साइड होगी वो नीडल वही मूव करेगी। इज इट क्लियर? सो लेट्स सी द कंपास। आप कंपास को देखिए, ये कंपास आपको दिख रहा होगा, यू कैन सी इट ईजिली। ये आपकी जैसे आज आप मूव करते जाओगे उसके अकॉर्डिंग ये मूव करेगी। नॉर्थ साइड जहाँ जाएगी आपकी नॉर्थ साइड उधर मूव होती जाएगी। ओके, सो दिस इज अ मैग्नेटिक नीडल। जो ये मूव कर रही है दिस इज अ मैग्नेटिक नीडल, इट इज मूविंग अकॉर्डिंग टू द साइड। ओके, now see, let me show you a video that is showing that how will you show that magnet is helpful in finding direction। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, राइट आप इसके लिए प्रोसीजर ये है कि आपको ऐसा एक वुडन ब्लैंक चाहिए होगा जिसमें एक पॉइंट होगा जिसमें कि आप अपने मैग्नेट को लटका सकते हैं, राइट, विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। ओके, थ्रेड से हमने मैग्नेट को बांध दिया मिडल में, राइट। उसके बाद आपने क्या किया, मैग्नेट को टच किया, उसको मूव किया। जब वो रेस्ट पोजीशन में आएगा तो वो नॉर्थ साउथ की साइड ही करेगा। एक और आपके पास एग्जांपल है, आप एक लकड़ी में क्या करिए, अपने मैग्नेट को बांध दीजिए, उसके बाद एक पानी के टब में उसे छोड़ देना। जैसे आप पानी के टब में उसे छोड़ेंगे तो क्या होगा, देन जस्ट डिस्टर्ब करेंगे, पर कुछ टाइम में जब वो रेस्ट पोजीशन में आएगा ऑलवेज द नॉर्थ पॉइंट विल गो टू द नॉर्थ साइड। मतलब जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ साइड ही रहेगी, नॉर्थ पॉइंट की। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Let me show you again to show that freely spin magnet always point toward the north and south direction। आप कैसे शो करेंगे? Things required, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, एक वुडन ब्लॉक की रिक्वायरमेंट है आपको, राइट एक आपको वुडन ब्लॉक चाहिए। इसके लिए यू नीड अ बार मैग्नेट जिसपे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पॉइंटेड है। एक प्लास्टिक टब चाहिए फिल्ड विद हाफ। एंड प्रोसीजर ये है, पहला तो ये प्रोसीजर है, आपको ये स्टैंड चाहिए होगा जिसमें आप लटका सके। उसके बाद आप लटका दीजिए अपने मैग्नेट को, सस्पेंडेड विद द थ्रेड एंड डिस्टर्ब इट। व्हेन इट विल स्टॉप, द नॉर्थ पॉइंट विल ऑलवेज गो टू द नॉर्थ साइड ऑफ द डायरेक्शन, इट विल शो द नॉर्थ साइड when it will stop। Okay, and another example is that you have to need a wooden blank and then bind it with the thread and then put it in a water, right, and disturb it again। आप उसे डिस्टर्ब कर दीजिए। आफ्टर when it will come to the rest, then it will again point only the north side। ठीक है, वो आपकी नॉर्थ साइड को ही पॉइंट करेगा। so this is the property of the magnet। Okay, this activity proves that freely spun magnet or static magnet is water always points toward the north south direction। वो exactly north and south direction को ही point करेंगे। Now the few cautions that you have to note down, that magnet lost their properties when they heated, hammered or dropped। मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी खो देता है अगर आप उसे हीट करेंगे, राइट या फिर उससे गिरा देंगे, किसी हाइट से आप उसे गिरा देते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है, मतलब उसकी मैग्नेटिक जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है इट विल बी लॉस्ट। ओके, ऑल्सो मैग्नेट बिकम वीक इफ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। उसको प्रॉपरली अगर स्टोर नहीं करेंगे देन इट ऑल्सो बिकम वीक। वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। दस अ बार मैग्नेट शुड बी स्टोर्ड इन पेयर्स। उसे हमेशा पेयर्स में ही स्टोर करना चाहिए, सेपरेट बाय स्मॉल ब्लॉक ऑफ वुड। और एक ब्लॉक ऑफ वुड को वुड से सेपरेट करके उसे आपको क्या करना चाहिए, सेपरेटली पेयर्स में रखना चाहिए, लेकिन एक उनके बीच में सेपरेशन होना चाहिए एक स्मॉल ब्लॉक ऑफ वुड का, राइट। एंड देयर अनलाइक पोल्स फेसिंग देयर सेम साइड। और उनके अनलाइक पोल्स हमेशा सेम साइड को फेस करने चाहिए विद द सॉफ्ट आयरन अक्रॉस देयर एंड्स। A piece of iron should be kept across the poles in case of the horseshoe magnet। और horseshoe magnet अगर है तो उसके साइड में आपका क्या होना चाहिए, there should be a piece of iron at their poles। पोल्स में उनका आपका एक आयरन का पीस होना चाहिए, राइट, ताकि उनका अट्रैक्शन बना रहे। मैग्नेट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम कंप्यूटर्स, मोबाइल्स एंड टेलीविज़न। हमेशा मैग्नेट्स को कंप्यूटर्स, टेलीविज़न इनसे दूर रखना चाहिए। Keep magnets away from cassettes, mobiles, televisions
म्यूजिक सिस्टम्स, कंपैरेटिव्स एंड द कंप्यूटर, इन सब चीज़ों से आपको उन्हें दूर रखना चाहिए. ठीक है, तो दिस इज द end of the chapter. This magnet chapter is completed. It is fully completed now. Now let's learn about the some questions that I already given you in a previous worksheet that I given you to do. Now I'm showing you the answers of that particular worksheet. Now see that exercise I have given you in based on NCERT, that artificial magnet are made in different shapes such as. अब इसका आंसर बड़ा इजी था, मैंने आपको पढ़ाया था. like these are what? These are bar magnet, cylindrical magnet and horseshoe magnet. और इन तीनों में से और भी था एक और, needle shape magnet. आप वो भी लिख सकते हैं. there is no bar for you to write only these 3 answers. आप कोई भी 2 आंसर्स को लिख सकते हैं. right, next is the material which are attracted towards a magnet are called. जो materials हमारे magnet की तरफ attract होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? It's very simple, magnetic materials. Paper is not a dash material. Paper क्या है? Magnetic material नहीं है, right? So answer will be magnetic material. In olden days, sailor used to find direction by suspending a piece of magnet. Okay. Piece of magnet. Okay. A magnet always has 2 poles. मैग्नेट के हमेशा कितने पोल्स होते हैं? 2 पोल्स होते हैं. अब बात करते हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स की, सॉरी ट्रू फॉल्स की. ट्रू फॉल्स में आपका पहला क्वेश्चन था लाइक अ सिलिंड्रिकल मैग्नेट हैज़ ओनली वन पोल. क्या एक सिलिंड्रिकल मैग्नेट का सिर्फ एक ही पोल होता है? नहीं, मैग्नेट के क्या हमेशा क्या होते हैं? 2 पोल होते हैं. पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स. पोल्स हमेशा 2 पोल्स होते हैं. सो इट विल बी फॉल्स. आर्टिफिशियल मैग्नेट वर डिस्कवर्ड इन ग्रीस. क्या आर्टिफिशियल मैग्नेट ग्रीस में डिस्कवर हुआ था? नो, इट्स अ नेचुरल मैग्नेट दैट इज डिस्कवर्ड इन अ ग्रीस. ओके, नाउ सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपल इच अदर. जो सिमिलर पोल्स होते हैं मैग्नेट के वो एक दूसरे को रिपल करते हैं. क्या ये सही है? नो, सिमिलर पोल्स रिपेल ही करते हैं. इट्स करेक्ट, क्योंकि अपोजिट पोल, इट मीन्स अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट इच अदर एंड सिमिलर पोल रिपेल इच अदर. तो इट इज़ करेक्ट, इट इज़ ट्रू. मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्टिक इन द मिडल ऑफ द बार ऑफ मैग्नेट व्हेन इट इज़ ब्रॉट नियर दैम. नो, इट इज़ फॉल्स. मैंने आपको बताया था कि मैग्नेट्स के जो पोल्स होते हैं वहाँ पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है. दैट्स वाई जो आयरन फिलिंग्स हैं वो एंड में अट्रैक्ट होंगी. ओके. बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. येस, बार मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट होता है. इज इट करेक्ट? इट इज़ करेक्ट. A compass can be used to find east-west direction at any place. No, compass is also based on the magnet theory. So that's why if it can find north-south direction, then it can also find east and west direction. कंपस से क्या होता है? आपको सारी डायरेक्शन पता चल जाती है. नॉर्थ साउथ भी, जब आपको नॉर्थ साउथ पता चल गई तो आपको ईस्ट वेस्ट अपने आप ही पता चल जाती है. तो इट इज़ ऑल्सो करेक्ट कि हम कैन बी यूज्ड, मतलब हम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन भी उससे फाइंड आउट कर सकते हैं. इट इज़ करेक्ट. द लास्ट वन इज रबर इज़ अ मैग्नेटिक मटेरियल. क्या रबर मैग्नेटिक मटेरियल है? क्या उसे आप मैग्नेट से अट्रैक्ट करवा सकते हैं? नो, इट इज़ नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल. सो थैंक यू एवरीवन. Keep watching the video and do your work properly after watching the video. And always, if you're having any problem in the video and if you're not able to understand any topic, I will repeat that topic again. You can ask me in group. Okay? So thank you everyone.